ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਕਲੋ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਆਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫੌਫੋ ਰਾਜੂ ਪਲਾਤਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗਲੀ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। किसी एक का कोई झगड़ा होता है और पूरी पूरी बातियाँ और बस्तियाँ जला दी जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, किसी एक बंदे का डिस्प्यूट किसी के साथ हो सकता है। अब वो जो बात कर रहे हैं जिन्होंने फायरिंग की है वो वहाँ के मंशियात फरोश हैं, बड़े पॉपुलर लोग हैं वहाँ पे, उनका पूरा पता है और सारा सिस्टम माफिया है और बहुत सी FIR उनकी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। कम्युनिटी का दोनों कम्युनिटीज का सेम मैटर नहीं था। उन्होंने एक दिन पहले ये झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक बंदे पे हमला नहीं किया, पूरी आबादी पे हमला किया। तकरीबन 20 घरों पे फायरिंग की है। उसमें 8 खवातीन को गोलियां लगी हैं, एक प्रेग्नेंट खातून को 2 गोलियां लगी हैं, लोगों के घरों पे गोलियां बरसाई हैं। और पुलिस का ये हाल है कि इन्होंने 780 तक नहीं लगाई, उसमें रजिस्टर नहीं की। खौफ और आपका अलग ये किसी से मेरा झगड़ा उससे घर जाऊंगा मैं, पूरी आबादी ने फायरिंग की है। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਠਹਿਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ 35-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਆਂ ਚੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗੰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਾਲਮ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੂੜਿਓ ਸਾਈਓ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਪੈਣਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਮਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ। ये है शेराकोट का मसीही मोहल्ला शमसाबाद, जो आज भी खौफ के साया में दिन की रोशनी में डरा हुआ है। डर का दबदबा इतना क्यों ना यहाँ होता। दरिंदा सिर्फ लोगों ने अपनी नफरत को, इंसान तो इंसान, अपनी दहशत को फैलाने के लिए मसीही मोहल्ला के एक पालतू कुत्ते को भी 10 सोच रखते हुए अपनी गोलियों का निशाना बनाकर मार डाला। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਿਕਲੋ ਕੁੱਤੇ ਉਸ ਆਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਈ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਫੌਫੋ ਰਾਜੂ ਪਲਾਤਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋੜ ਅਗਲੀ ਉਹ ਗਲੀ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਫਿਰ 3-4 ਬੀਬੀਆਂ, ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੁੱਤਾ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਲੰਘਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। दहशतगर्दी फैलाई, बस यो ही है कि जी छड़ना नहीं था। मसीही मोहल्ले में तकरीबन हर मसीही घर के बाहर गोलियों के निशान बाकी हैं, जो मसीही मोहल्ला के लोगों को पुलिस की मौजूदगी में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास करवा रहे हैं। हमारे इधर मोहल्ले में जो वाक़या हुआ है, हमें इस बात का अभी भी डर है कि दोबारा फिर ना ये लोग आ जाएं। पुलिस वालों ने हमें सेफ्टी तो दी हुई है, लेकिन हमें ये डर है कि ये चले जाएंगे तो हमें हमारे घर में फिर दोबारा ये हमला ना हो जाए हमारे मोहल्ले में। इस मसीही मोहल्ला में 30 से 35 घर हैं, जिनमें चंद घर मुसलमानों के भी हैं, जो तमाम के तमाम इस टारगेट फायरिंग से महफूज रहे। मोहल्लेदार मुस्लिम लोगों का कहना है कि मसीही कौम के साथ ज्यादती हुई है। इनका कहना है कि हम अमन पसंद कौम के साथ हैं। ਫੈਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਖਰੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਚ ਗਿਆ ਤੇ ਫੈਰ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 30-35 ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ 2-3 ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਕਾਇਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। गली में 2 मुस्लिम घरों के बाहर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, पर इन दोनों घरों और पुलिस के मुताबिक इस वाकया की फुटेज मौजूद नहीं है। वहीं पर CCTV फुटेज दोनों घरों के कैमरों में ना होना ये सवाल भी पैदा करता है
कि आया ये मुस्लिम लोग इन शिद्दत पसंदों से डर गए हैं या कि इनको मसीह बरादरी के इबादत से कोई मसला था। ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਨਕੀਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਊਡਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੰਗ ਤੁੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਖੋਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਣ, ਮਸੀਹੀ ਡਰ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਛੁਪ ਕੇ ਕਰਨ। एक छोटे से वाक़या में जिसमें मारा भी एक मसीही शख्स हो गया हो, पर इस वाक़या को एक बहाना बनाकर पूरी मसीही आबादी पर हमले की वजह अगर एक शख्स था तो निशाना तो एक शख्स ही होना चाहिए था। किसी एक का कोई झगड़ा होता है और पूरी पूरी वादियाँ और बस्तियाँ जला दी जाती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है, किसी एक बंदे का डिस्प्यूट किसी के साथ हो सकता है। अब वो जो बात कर रहे हैं कि उन्होंने फायरिंग की है, वो वहाँ के मंशियात फरोश हैं, बड़े पॉपुलर लोग हैं वहाँ पे, उनका पूरा भत्ता है और सारा सिस्टम माफिया है और बहुत सी FIR उनकी जो है वहाँ पे रजिस्टर्ड है। कम्युनिटी का, दोनों कम्युनिटीज का सेम मैटर नहीं था। उन्होंने एक दिन पहले ये झगड़ा हुआ है। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये किया है कि उन्होंने एक बंदे पे हमला नहीं किया, पूरी आबादी पे हमला किया। तो 20 घरों पे फायरिंग की है, उसमें 8 खवातीन को गोलियां लगी हैं, एक प्रेग्नेंट खातून को 2 गोलियां लगी हैं, लोगों घरों पे गोलियां बरसाई हैं। और पुलिस का ये हाल है कि इन्होंने 780 तक नहीं लगाई, उसमें रजिस्टर नहीं की। खौफुल आपका आलम ये किसी से मेरा झगड़ा उससे घर जाऊंगा मैं, पूरी आबादी में फायरिंग की है। हर घर में आप जाएंगे करने वाले कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी का बंदा नहीं था, वो लोकल वहाँ का माफिया है, वहाँ के डोगर्स हैं जिन्होंने ये हरकत की थी वहाँ पे, और उनके नाम नॉमिनेटेड FIR से 10 के करीब वो लोग थे। और एक बंदा मैगजीन भरने पे था, 20 घरों में गोलियां लगी। उनके जो उस FIR में 3 लोगों के नाम है, क्या ये वही दुरुस्त लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने किया है। हमेशा किसी एक पे इल्जाम लगता है और पूरी आबादी जला दी जाती है। अभी भी यही हुआ है, किसी एक का झगड़ा है और पूरी आबादी पे उन्होंने आके अटैक किया। और पुलिस की जो पुलिस की रिपोर्ट आप देख रहे हैं, पुलिस की रिपोर्ट ये है कितने राउंड्स फायर हुए आप बता रहे थे? 200 से ज्यादा 200 से ज्यादा राउंड्स 200 से ज्यादा राउंड्स हैं। और हर घर पे फायरिंग की है, बच्चों को गोलियां लगी हैं, औरतों को गोलियां लगी हैं। मैं समझता हूँ 9 लोग तो जो थे वो 2 दिन हॉस्पिटल में रहे, मरम पट्टी रेल की गोलियां निकाली गई, गोली बीच में ही है अभी तक। और वो उनके घरों में विजिट किया है, 20 से करीब घरों पर फायरिंग किया। अच्छा जी, और 780 नहीं लगी। पुलिस का तो ये हाल है। सैयद साहब, मेरी अर्जी है कि आप ये जो रिपोर्ट आई है जी DG साहब, आप इसको प्रिलिमिनरी रिपोर्ट समझिए। सैयद अमरान महजूद साहब जो कंसर्न एक्सप्रेस कर रहे हैं, नंबर 1 कि दिस वाज मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ पब्लिक और टू स्केयर द पब्लिक एट लार्ज, जो कि perhaps validly falls within the ambit of Section 7 Anti-Terrorism Act. पर दर हकीकत ये एक मजहबी इंतहा पसंदी और मजहबी तस्बी जुनून का है जो हमला करते वक्त मसीहियों को चला चला कर कहते रहे, निकलो साइयो, निकलो चोरो। ऐसे लफ्ज़ और वाक़यात ही माशरे में अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह बनते हैं।